Yes. हाँ, तो आप लोगों को जहां जहां पे डाउट है यू विल बी आस्किंग मी, ठीक है। आपको जहां पे भी डाउट है यू जस्ट आस्क मी, आई विल शेयर दिस पीपीटी फुल वंस अगेन, ठीक है। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला, जहां पे भी आपको डाउट रहेगा यू कैन इंटरप्ट मी एंड यू कैन आस्क मी, अंडरस्टूड? Yes. Okay. So in this particular chapter, we have first understood the evolution point of view about the nervous system, है ना। हमने पहले इवोल्यूशन समझा इस लेसन के स्टार्टिंग पार्ट में कि हाउ इवोल्यूशन हैज टेकन प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द नर्वस सिस्टम. So unicellular organism, they show a simple life process, but a multicellular organism shows a complex life process. Plants and animals में difference क्या है? What is the difference? Plants show chemical signals, animal shows chemical as well as electrical signals. केमिकल सिग्नल्स इन द सेंस क्या है, प्लांट्स के अंदर हॉर्मोन्स होते हैं ना, तो क्या हॉर्मोन्स को हम केमिकल सिग्नल्स कह रहे हैं. प्लांट के अंदर बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन, गिबरेलिन्स एक्सेट्रा. Phototrophs are one of the good examples, and here reflex action is one of the good example. ठीक है. Then our nervous system has been responding to the environmental stress or any of the behavior. You can see this particular chart and you can understand the thing nicely and properly. So the nervous system is in coordination with the endocrine system, in coordination with our immune system. Okay. Then it is giving response to stimulus to the external as well as the internal environment. Yes. So these two systems, nervous and endocrine systems, they work in hand and bring about the control and coordination of different cells, tissues, organs, and organ system of our body. Okay. So this was just an introduction of the lesson. So which animal is this? Which animal? कौन सा एनिमल दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? Yes, which animals you are seeing? Can you see on the screen? Sponge. Yes, it's a sponges, है ना. स्पॉन्जेस को रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस होता है कि आप स्पॉन्जेस को टच करोगे तो वो लोग कोई मूवमेंट दिखाएंगे क्या? No. और है तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ना. हाँ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है मतलब वी कैन सी इट, हम देख पा रहे हैं मतलब मल्टी सेलुलर है. और फिर भी रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब क्या? वी व्हाट वी वांट टू से दैट इट इज द फर्स्ट फाइलम इन द किंगडम एनिमेलिया with respect to the multicellular organism. बट जो फर्स्ट फाइलम है उसके अंदर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस नहीं है. फिर जैसे हम सेकेंड फाइलम में जाते हैं सिलेंट्रेटा में, एग्जांपल हाइड्रा, वी कैन सी द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, है ना. So yes, phylum Porifera, they show only cells, no tissues. Various cells perform different functions like digestion, respiration, excretion, but no nervous system. Huh? They don't have nervous system. They show least division of labor. Next, phylum Nidaria, जिसको हम Coelenterata भी कहते हैं. Nidaria बोलो या Coelenterata बोलो, again it is important for neat point of view. Example is Hydra. So primitive organisms, they which shows nervous system. It consists of the nerve cells and sensory cells. The nerve cells कैसे present है? They are present in the form of a nerve net. So सबसे पहला nervous system जो originate हुआ था वो कौन से फॉर्म में था? नर्व नेट के फॉर्म में था. कौन से फाइलम में था? निडारिया में था या सिलेंट्रेटास में था. So you can see the diagram of a hydra with a nerve net. Nerve net. So both the nerve net in hydra present in the mesoglium. So one is in epidermis and another is in gastrodermis. Epidermis means ऊपर का layer and gastrodermis मतलब जहाँ पे उसका digestive system है. Gastro word is related to the digestive system. Correct?
Yes. Yes. Then sensory cells are distributed all over the body wall and in the tentacles also. तभी तो वो टेंटाकल्स को हिला के क्या कर सकता है, ऑफेंस एंड डिफेंस कर सकता है, ऑफेंस एंड डिफेंस। अगर कोई एनिमल उसके पास आता है तो हाइड्रा के टेंटाकल्स में क्या होता है, हाइड्रा के टेंटाकल्स में नीडोसाइट्स होते हैं। क्या होते हैं, नीडोसाइट्स। नीडोसाइट से क्या करता है, वो स्टिंगिंग सेल्स है। दिस आर द नेमाटोसिस्ट, नेमाटोसिस्ट विच आर द स्टिंगिंग सेल्स। स्टिंगिंग सेल्स मतलब जब भी इसके ऊपर कोई हमला करेगा हाइड्रा के ऊपर तो वो उसको डंक मारता है विद द हेल्प ऑफ दिस नेमाटोसिस्ट। तो ये जो समझ है कि मुझे डिफेंस करना है, मुझे ऑफेंस करना है, मुझे किसी को खाना है, तो ये सिर्फ किसके वजह से पॉसिबल होता है, बिकॉज ऑफ अ नर्वस सिस्टम। सो न्यूरॉन्स आर, हाँ बोलो। मैम मतलब नीडोसिंस और न्यूरोब्लास्ट सेम चीज नहीं है? नहीं नहीं नहीं। ओके। Yeah. यस मैम। ओके, न्यूरॉन्स आर नॉट, देखो नेक्स्ट फाइलम जो है जिसके अंदर ये आता है वो चमकने वाला ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज दैट, नेक्स्ट फाइलम। निडारियंस के बाद नेक्स्ट फाइलम कौन सा है, जिसमें प्लूरोब्रैकिया आता है, सब भूल गए। उनके पास क्लोरोप्लास्ट, हाँ, टीनोफोरा। टीनोफोरा। यस, तो टीनोफोरास के पास ब्लास्ट होते हैं विच आर स्टिकिंग सेल्स। ओके, नाउ न्यूरॉन्स आर नॉट डिवाइडेड इनटू सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। अभी देखो ये ऑब्वियसली सिंपल ऑर्गेनिज्म है तो यहाँ पे एकदम वेल डेवलप नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे न्यूरॉन्स ऐसे अलग अलग इसमें पार्ट में डिवाइडेड नहीं है, कुछ सेंसरी नहीं है, कुछ मोटर नहीं है। Activation of the sensory cells can take place at any point. An impulse can be carried throughout the body in any direction, है ना? So example is catching the prey during feeding. Understood? मतलब इनके पास moral of the story क्या है, they are having a nervous system, but it is the origination of a nervous system. तो obviously so well developed nervous system नहीं होगा, तो इनके पास ऐसे sensory neuron, motor neuron नहीं है, कोई भी सेंसरी सेल्स है, कोई भी सेल सेंसरी सेल्स है। टीनोफोरास, ठीक है, they are having a diffused type of nervous system in the landmark in the nervous system. Diffused means present inside the body, diffused inside the body, and you can see that they can generate the light, है ना, वो लोग लाइट जनरेट कर सकते हैं जिसको हम बायोलुमिनेसेंस कहते हैं, बायोलुमिनेसेंस। फिर प्लेनेरिया का एग्जांपल आ गया प्लैटीहेलमिन्थस में। सो दे आर हैविंग इन द फॉर्म ऑफ, अभी देखो नर्वस सिस्टम जो पूरे बॉडी में बिखरा हुआ था हाइड्रा में, अब देखो वो एक सेंटर में आ गया, उसने एक व्हाट टू से, उसने एक पर्टिकुलर पैटर्न बना लिया है बाय प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द बॉडी। ठीक है, यू कैन सी दैट द नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। ठीक है, हैविंग अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंटर में है इसलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो इन केस ऑफ इट यू कैन सी दैट द सेफेलिक, सेफेलिक का मतलब ही होता है ब्रेन, मतलब जो ब्रेन रीजन में, जो सेरिब्रल, सेरिब्रल बोलो सेफेलिक बोलो मतलब ब्रेन होता है, तो वहां के गैंग्लियंस, गैंग्लियंस का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल lie in the anterior region of the body. You can see that यहाँ पे बहुत ज्यादा anterior region में जहाँ पे ब्रेन आपको नजर आ रहा है वहां पे बहुत ज्यादा गैंग्लियंस प्रेजेंट हैं। ठीक है, from each ganglion arises 9 branches. From below the ganglia arises and give rise to the ventral nerve cord. You can see the presence of this nerve cords over here, है ना, यहाँ से nerve cord form हो रहा है। So ventral nerve cord are connected by each because of a commissure. हमेशा याद रखो बायो में जो ब्रिज बनाता है उसे हम कमीशर कहते हैं। तो जो ट्रांसवर्स नर्व दिख रहे हैं आपको डायग्राम में, ये ट्रांसवर्स नर्व क्या है, दे आर द कमीशर्स, दे आर कनेक्टिंग द टू नर्व कॉर्ड। कमीशर्स का मतलब ही होता है ब्रिज या कनेक्शन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दे आर फॉर्मिंग अ प्लेक्सस। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्लेक्सस? प्लेक्सस का मतलब होता है नेटवर्क, network which are arising from the ventral nerve cord.
you can see a photosensory structure which are been called as the eyes, which are present on the dorsal side of the body. Okay, you can see a eye spot in case of the planaria. So let us understand the neural tissue. टिश्यू बोल रहे हैं तो किससे बना है? सेल से बना है. तो न्यूरल टिश्यू का जो सेल है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं. क्या कहते हैं? न्यूरॉन. तो नर्वस टिश्यू किस चीज से बना है? न्यूरॉन, दैट इज अ नर्व सेल से बना है. और उसके साथ साथ पैकिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम न्यूरोग्लियल सेल्स कहते हैं. सो व्हाट आर द न्यूरॉन्स? दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम. कहाँ से ओरिजिनेट होता है? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू. Originated from ectoderm. They are less in number as compared to neuroglial cells because neuroglials are the packing cells. They are more in number. And neurons के बहुत सारे types होते हैं depending upon their work. Sensory neuron will take the message from sense organ to central nervous system. Motor neuron will take the message from central nervous system to the effector organ. And mixed neuron does both the work. It can do to and fro. मैंने जब आपको एक्सप्लेनेशन किया था तब मैंने आपको न्यूरॉन्स के बारे में एक और खास बात बताया था कि न्यूरॉन्स का जो नंबर होता है वो फिक्स्ड होता है. वी आर हैविंग अ फिक्स्ड नंबर ऑफ न्यूरॉन इन आवर बॉडी. ठीक है. व्हाई? बिकॉज द न्यूरॉन्स लैक सेंट्रियोल्स, सो दे डू नॉट डिवाइड. ठीक है. बट as they cannot divide, so nature ने क्या किया है कि पता है कि बाबा न्यूरॉन्स नहीं डिवाइड कर सकता है तो उसको क्या किया है? बहुत ज्यादा पैकिंग मटेरियल प्रोवाइड किया है, सपोर्टिंग मटेरियल और अ पैकिंग मटेरियल विच कैन डिवाइड. ठीक है. तो ये जो पैकिंग मटेरियल है, जो सपोर्टिंग मटेरियल है, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूरोग्लियल सेल्स कहते हैं, जो डिवाइड कर सकता है. सो दे आर सपोर्टिंग सेल्स. Again, they have been originated from the ectoderm. They are more in number, and the examples for them are the ependymal cells, Schwann cells, microglial cells. You have learned all these types in detail also in your book with a diagram. है ना? So types of neuron, there are 3 types of neuron: sensory, motor, and mixed. And types of neuroglials में you have learned many. You have learned ependymal cells, you have learned Schwann cells, है ना? Microglial मैंने और भी आपको बताया था, oligodendrocytes, satellite cells, astrocytes. याद है? याद है या नहीं? Yes. Yes. Okay. So let us see the diagram of a neuron. कैसा दिखता है न्यूरॉन? अगेन न्यूरॉन के अंदर 2 हिस्से होते हैं, सोमा और द बॉडी. सोमा और द बॉडी is also called as साइटॉन. सोमा को हम साइटॉन भी कहते हैं. इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस तो है ही प्रेजेंट सेंटर में, साथ में न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी है. ठीक है. जो साइटोप्लाज्म है उसे हम क्या कहेंगे? न्यूरोप्लाज्म कहेंगे. इस न्यूरोप्लाज्म के अंदर हमें क्या दिखता है? 2 चीजें दिखाई देती हैं. न्यूरोफाइब्रिल्स भी दिखते हैं और नीसल्स बॉडीज भी दिखता है. ठीक है. अच्छा, साइटॉन के आजू बाजू में बहुत सारा आउटग्रोथ हमें दिख रहा है, बहुत सारे प्रोसेस दिख रहे हैं या आउटग्रोथ दिख रहे हैं. इस आउटग्रोथ को हम क्या कहते हैं? डेंड्रॉन्स. और डेंड्रॉन के छोटे छोटे ब्रांचिंग को हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स. ठीक है. दे आर मेनी इन नंबर. अगेन द प्रोसेस विच इज moving away from the cyton, the process or the outgrowth which is moving away from the cyton and which is 1 in number, it is called as the axon. ठीक है. एक्सॉन. जहां से एक्सॉन स्टार्ट होता है वहां पे एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं एक्सॉन हिलॉक. एक्सॉन हिलॉक विच इज अ ट्रिगर जोन. देन ये जो एक्सॉन है उसका जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम क्या कहेंगे? एक्सोलेमा कह सकते हो आप. एक्सॉन का आउटर मोस्ट लेयर विल बी कॉल्ड एज एक्सोलेमा. न्यूरॉन का आउटर मोस्ट लेयर विल बी कॉल्ड एज न्यूरिलेमा. एक्सॉन के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसे आप क्या नाम दोगे? एक्सोप्लाज्म दोगे. ठीक है. अच्छा, एक्सॉन का क्या खास बात है कि इट हैज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड एज अ श्वान सेल्स. ये श्वान सेल्स क्या करते हैं? माइलिन के शीट बनाते हैं. माइलिन मतलब फैट का लेयर बनाते हैं, फैट का लेयर. ठीक है. और ये फैट के लेयर के वजह से क्या होता है? नोड्स का फॉर्मेशन होता है. क्यों? बिकॉज द फैट का लेयर इज इंटरप्टेड इन बिटवीन. ठीक है.
because fat ka layer myelin sheath is interrupted in between, therefore it is forming a nodes, and this node is called as a nodes of Ranvier. This node formation is very, very important because it helps in the saltatory conduction. What do you mean by the term saltatory conduction? The impulse will jump fast. The impulse will jump very fast from one node to another node, जिसके वजह से ट्रांसमिशन काफी फास्ट हो जाता है. तो जहां कहीं भी नोड्स ऑफ रेनवियर होता है वहां पे क्या होता है, बहुत फास्ट इम्पल्स जनरेट होता है. अंडरस्टूड? And the last part is called as a synaptic knob. The last part is called as a synaptic knob, which can also be called as a telodendron. Telodendron. So again, whatever I've explained you, the same thing. Cyton or a cell body has a neurofibrils, nacelles, granules, and other cell organelles also. Dendrons are many in number, which are arising very close to the cyton. Axon are single unbranched and it is arising away from the cyton. What is synapse? Synapse का मतलब क्या होता है, दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है, छोटा सा कनेक्शन या इंटरकनेक्शन के बीच में जो छोटा गैप होता है, उसे हम कहते हैं साइनैप्स. तो साइनैप्स दो न्यूरॉन के बीच में होता है. तो दो न्यूरॉन मतलब दो सेंसरी न्यूरॉन के बीच में हो सकता है, दो मोटर न्यूरॉन के बीच में हो सकता है, या दो सेंसरी मोटर के बीच में हो सकता है. ठीक है. सो साइनैप्स कैन बी एक्सोडेंड्रोनिक, मतलब एक्सोडेंड्रॉन के बीच में, या फिर एक्सो और एक्सो के बीच में हो सकता है, या तो एक्सोसोमैटिक भी हो सकता है, मतलब सोमैटिक सेल्स मतलब अपने बॉडी सेल्स, या फिर डेंड्रोडेंड्रोनिक भी हो सकता है. सो साइनैप्स कैन बी द स्पेस. Understood? Next is the medulated and non-medulated. Medulated मतलब myelinated, मतलब जिसमें माइलिन शीथ है. ठीक है. तो इम्पल्स बहुत फास्ट भागेगा, तो उसको हम बोलेंगे मेड्यूलेटेड वन. नॉन मेड्यूलेटेड या नॉन माइलिनेटेड मतलब जिसमें माइलिन शीथ नहीं है, तो वहां पे इम्पल्स बहुत स्लोली जाएगा. So conduction of impulse is very fast in the medulated one as compared to the non-medulated one. You can see this. Now this is the covering of the neuron. Covering of the neuron. So सबसे पहला है क्या है, एपीन्यूरियम. एपीन्यूरियम के बाद है पेरीन्यूरियम एंड देन उसके अंदर है एंडोन्यूरियम. सो एपीन्यूरियम का मैंने आपको ये वाला तो पीपीटी अलग दिखा रही हूँ, बट मैंने आपको रेगुलर लेक्चर में दूसरा पीपीटी दिखाया था जिसमें मैंने आपको सारे डायग्राम्स जूम करके दिखाए थे. यस और नो? एंड आई हैव टोल्ड यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो. यस. Yes. Yes. लार्ज बंडल ऑफ नर्व इज कवर्ड ऑन आउटर साइड. आउटर साइड में कौन है, एपीन्यूरियम. उसके अंदर फिर फ्यू फैसिकुलाइज हैं, हाँ, फिर दे आर कॉल्ड एज ए पेरीन्यूरियम, और सबसे अंदर क्या है, एंडोन्यूरियम, विच इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ओके, वापस ये साइनैप्स के बारे में आ गया. See, it is like the synapse has been shown with this method, like a gap. जैसे ये बच्चा और ये बच्चा के बीच में जो गैप है, that can you can say as a synapse. Like a bridge. Synapse is like a bridge. So what are the properties of a nerve fiber? It shows excitability, irritability, conduction, conductivity. It shows stimulus. है ना? Then threshold stimulus should be there. We have learned the different types of stimulus also. एक minimum amount of stimulus रहना ही चाहिए. Then summation effect also we have learned. We have learned none or all or none law also. Do you remember all this? Refractory period, synaptic delay, all these things we have already understood with the proper examples. Yes, presynaptic neuron क्या होता है? Which carries the impulse to the synapse, and post क्या होता है? The neuron which receives the impulse from the synapse.
I hope as it was your doubt and difficulty lecture, you must be ready with your doubts. Okay. Now, cleft क्या है? It's a small intercellular space. This can be asked as a 1 mark question in the board exam. And for your board exam, time is very less. Okay. So I hope all of you must be going to the colleges also. Okay. कॉलेज तो जा ही रहे होगे आप, आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा कॉलेज में. And utilize this Diwali vacation in just studying and completing all the projects, all the diagrams of your journals or whatever has been there. Okay. Don't waste your time because you have very little time in your hand now. Okay. अभी अक्टूबर तो खत्म हो ही गया है ऑलमोस्ट. नवंबर तो ऐसे ही दिवाली में चला जाएगा थोड़ा बहुत. And then just a 1 month in your hand, that is December. ठीक है. एंड दिसंबर के बाद जैन तो फटाफट ही हो जाता है. दिसंबर का भी आधा टाइम क्रिसमस एंड न्यू ईयर में चला जाता है. एंड दोज आर गोइंग टू द कॉलेज, तो बहुत सारे डेज भी स्टार्ट होते हैं बिकॉज इट्स ऑफलाइन कॉलेज नाउ. सो बहुत सारे डेज भी चले जाते हैं कॉलेज में. ये डे, वो डे, दिस डे, दैट डे. और ऑलरेडी आपको ऑनलाइन की वजह से बहुत सारा ये हुआ है. यू हैव गॉट एम्पल ऑफ टाइम एट होम टू स्टडी, बट आई डोंट नो हाउ मच ऑफ यू हैव यूज्ड इट फ्रूटफुली. सो इट्स अ टाइम नाउ कि आप अभी से पढ़ना अच्छी तरह से स्टार्ट कर दो बिकॉज योर एग्जाम विल बी ऑफलाइन. यू मस्ट हैव हर्ड द न्यूज ऑल्सो. योर एग्जाम्स आर ऑफलाइन. इट विल बी ऑफलाइन ओनली. ठीक है. सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर योर. आपका सिलेबस भी रिड्यूस किया है. सो यू डोंट हैव एनी एक्सक्यूज कि बाबा हमको इतना पढ़ के नहीं होता है, उतना पढ़ के नहीं होता है. Your portion has been reduced both for the practicals as well as for the theory. So everything is now in your hand. ठीक है. So let us see the types of synapse. It's the electrical and the chemical synapse. अच्छा, electrical synapse कैसे होता है? The gap between the two neuron is very narrow. How much it is? About 3.8 nanometers. Synapse is a mechanical thing. ठीक है. Mechanical process. Electrical conductivity link is formed between the pre and the post one. Transmission of impulse is very fast. Example, defense of reflexes. Chemical में क्या होता है? By the release of the hormone. And which is the hormone? It's acetylcholine. Acetylcholine. So it's a specialized junction between one neuron and send chemical signal to the another neuron, such as glands or muscles. So gap between the two adjacent neuron over here is thoda more. It is about 20 to 40 nanometers. ठीक है. यहाँ पे भी क्या होता है? प्रीसिनेप्टिक होता है, सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स होते हैं. This diagram you must have drawn in your notebook also. यहाँ पे भी calcium ion plays a very very important role to break the vesicles. So you can see in the diagram there is a presynaptic neuron. ठीक है. You can see a bulb or bulb synaptic vesicles है. और vesicles के अंदर आप क्या देख सकते हो? There are hormones present. Which are that hormones? They are the neurotransmitters. They are acetylcholine, है ना? Neurotransmitters, acetylcholine. कैल्शियम आयन के वजह से ये वेसिकल्स बर्स्ट होंगे. सारे जो ये है न्यूरोट्रांसमीटर है वो कहाँ पर आ जाएंगे? क्लेफ्ट में आ जाएंगे. सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाएंगे. ठीक है. सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आने के बाद उसको रिसीव कौन करेगा? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन उसे रिसीव करेगा. यस. Yes. ओके. So how the transmission of the nerve impulse is taking place? Neuron has a special features which is called as a excitation. Transmission of nerve impulse throughout the length of the long nerve is a way of conduction of excitation. Conduction का मतलब क्या होता है? Pass on होना. And excitation का मतलब है trigger होना. So charges are different inside and outside of the neuron, है ना? Charge अलग अलग होता है जिसको हमने पढ़ा था पोलराइज्ड एंड डीपोलराइज्ड एंड रीपोलराइज्ड के फॉर्म में.
ठीक है, बाहर predominance of sodium and chloride ions outside the axon and predominance of potassium ion inside the axon. सोडियम ज्यादा बाहर होने की वजह से क्या होता है, बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है और अंदर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होती है। फिर क्या होता है, जब भी नर्व का इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा तो क्या होता है, द सोडियम पोटेशियम चैनल पंप ओपन्स, है ना, सोडियम पोटेशियम जो पंप है वो ओपन होता है एंड देन द सोडियम आयंस विल गो इनसाइड एंड अगेन चेंज द पोलैरिटी। पोलैरिटी चेंज होते ही क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है एंड द इम्पल्स इज बीन कंडक्टेड। So once the stimulus is applied, the rapid influx of sodium ion take place. Not only leakage channel but also gated channels for sodium and potassium are also present in the axon. So you can see that how the message is always passing from dendroids to axon. It is always unidirectional. So depolarization, polarization and repolarization. Depolarization कभी होता है, कभी भी अगर कोई भी change है या disturbance है which cause sodium to enter into the membrane and lower the potential difference, मतलब that is less than 70 millivolts, उसे हम कहेंगे depolarization. Depolarization कब होगा, जब भी कभी stimulus मिलेगा। तो जब भी कुछ स्टिमुलस मिलेगा सोडियम फटाफट अंदर जाता है, सोडियम अंदर जाने की वजह से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, लो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, दैट इज अबाउट लेस देन 70 मिलीवोल्ट्स, है ना। तो इसी को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन होते ही क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन क्या होता है, सोडियम गेट्स ओपन होता है बट नॉट द पोटेशियम गेट। फिर रिपोलराइजेशन कैसे होगा, जब ये सोडियम वापस बाहर चला जाएगा, वापस रिपोलराइजेशन होगा। So change the polarity from depolarized back to the original state. So this was the diagram we have already seen. I have shown you the video also about the sodium channel and the sodium gate. So the first diagram is about the resting axon, then excited one, and again you can see that how it has been shifted. You can see with the same diagram has been given in your textbook also. You can see with this particular diagram how it has been shifted. So polarized, depolarized, and the last diagram, C diagram, is showing the repolarized. So what are the steps? So application of the stimulus, क्या होना चाहिए, कोई भी stimulus मिलना चाहिए resting nerve पे। फिर क्या होगा, permeability change होगा and it will become more permeable to sodium ions. सोडियम आयन अंदर जाएगा फटाफट। ECF मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कहाँ पे जाएगा, अंदर जाएगा, मेम्ब्रेन में जाएगा। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन अंदर इंक्रीज हो जाएगा। यस, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज फ्रॉम -70 millivolts to about 30 millivolts। ठीक है, इससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। पोलैरिटी हैज चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव and as the peak of action potential, the sodium channel closes and potassium gate open. So inside the axon membrane now become negative again and ECF becomes positive again. So you can just write down in your notebook if you want, or else I think so you must have written also. If you want to take a screenshot, again you can take a screenshot of this page. So in a mediated nerve fiber, the insulating myelin sheath prevents flow of ions between the axon and the ECF.
The transport pump and gated channels can operate only in the region of nodes of Renier where myelin sheath is absent. Action potential cannot travel as a wave of membrane. It has to jump from node to node, and this process is called as a saltatory conduction. Saltatory conduction. So now human nervous system. Our human nervous system is divided into three parts: central nervous system, peripheral nervous system, and the autonomous nervous system. So we have discussed each and every part of this nervous system. Central में आता है brain, spinal cord, peripheral में आता है cranial nerve, the nerves which are coming from brain, and spinal nerve coming from the spinal cord. Autonomous से क्या आता है? Sympathetic and parasympathetic आता है. So this we have learned about the covering of the brain and the spinal cord, that is central nervous system का covering with the help of a connective tissue called as a meninges. So there are three layers in the meninges: dura mater, arachnoid matter, and the pia mater. Dura mater is outermost one, non-vascular, fibrous connective tissue से बना है. Arachnoid क्यों बोलते हैं? Because ये मकड़ी के जाले के जैसा दिखता है, spider web like appearance है, इसीलिए vascular है. And pia mater जो है वो highly vascular है, बहुत rich in blood supply है, which is in contact with the brain and the spinal cord. Then we have discussed about the cerebrospinal fluid, which has been present in the brain, in different regions of the brain as well as in the ventricles of the brain. Again, so it's a lymph-like fluid. It is acting as a shock absorber. It provides nutrients, helps in gas exchange, helps in prevents from desiccation, all these things. इसको बनाता कौन है? CSF को कौन बनाता है? Choroid plexus and ependyma cells बनाते हैं. What is study of brain called as encephalology? And brain is enclosed inside the cranium. This is the thing which has been given in your book. So brain में three regions: forebrain, midbrain, and the hindbrain. You have to know the other alternative names also: prosencephalon, mesencephalon, and rhombencephalon. Okay. So we have discussed all these parts. So forebrain में three regions होते हैं: olfactory, cerebrum, and diencephalon. Olfactory is also called as a renin. Cerebrum is also called as telen, and diencephalon. Olfactory के बारे में हमने क्या बताया था कि वो बहुत छोटा लोब है in case of human being, इसलिए sense of smelling बहुत poorly developed है. Cerebrum के बारे में क्या बताया था? It is the largest part. कौन कौन से highlighted points से in the cerebrum? ये सबसे पहला, it is made up of two hemisphere called as a cerebral hemisphere, and which has been joined with the help of the corpus callosum. Very important, corpus callosum. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था इसमें cerebrum में कि we can see many folds and we can see many depressions. The folds are been called as gyri, which shows the intelligence in case of the person, and there are many sulci is present. Then next part is the outer region is called as cortex and the inner region is called as a medulla region. ठीक है. और क्या क्या था ब्रेन के बारे में? And which are the other parts of the brain? The ventrolateral part is called as a corpora striatum. Okay. Now you can see in this particular diagram also the brain has been divided into many lobes: frontal, parietal, occipital, and temporal. हर एक लोब का अलग अलग काम है. ठीक है. Each and every lobe has different work.
So frontal lobe has 4 important areas, which are that areas: motor area, premotor area, association area, and Broca's area. Broca's area is also called as a motor speech area. Yes, यहाँ पे कुछ डाउट है ब्रेन में? कुछ किसी को ब्रेन वाले पार्ट में किसी को कुछ डाउट है? पैराइटल लोब का काम क्या है? इट हेल्प्स इन पेन, प्रेशर, टेम्परेचर. टेम्पोरल का फॉर हियरिंग, स्पीच, एंड ऑसिपिटल का सेंस ऑफ विजन. There is Wernicke's area. Wernicke's area is also called as the what? Sensory speech area. डायनसेफेलॉन में भी अलग अलग रीजन्स होते हैं. डायनसेफेलॉन में भी एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. एपिथैलेमस में क्या होता है? पीनियल ग्लैंड होता है. हाइपोथैलेमस में क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड होता है. थैलेमस का क्या काम है? आरएस सिस्टम बनाता है, दैट इज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज यहीं पे पिट्यूटरी ग्लैंड है, विच इज बीन कॉल्ड एज अ मास्टर ग्लैंड. It is forming a complex circuit which is called as a limbic system. A complex neuronal circuit is called as a limbic system. ये किससे बनता है लिम्बिक सिस्टम? हाइपोथैलेमिक अमिगडाला, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हिप्पोकैम्पस से. So all these diagrams you have already seen about the amygdala, hippocampus कहाँ पर है, everything. That green color is pink color. So this is a limbic system. Midbrain made up of corpora quadrigemina and crura cerebri. Corpora quadrigemina में भी दो colliculi होते हैं, superior and inferior. crura cerebri ब्रिज का काम करता है. Then rhombencephalon is made up of pons varolii, cerebellum and medulla oblongata. pons varolii again connection का काम करता है, bridge का काम करता है to connect all parts of the brain. Cerebellum is important because it helps in balancing the body. Yes, balancing the body में cerebellum help करता है. And medulla oblongata has its own importance because it is regulating the heartbeat, respiration, vomiting centers, many other things. Next is the spinal cord. You can see the spinal cord. Before starting with the spinal cord, anybody is having doubt till here? किसी का, as you know that किसी ने भी मेरे को अभी तो कुछ भी डाउट पूछा नहीं. आपने अपना डाउट्स रेडी रखा था या नहीं रखा था? Yes. हाँ तो पूछो तो क्या है. मैम डिलीटेड पोर्शन से है. अच्छा बोलो. मैम Reflex स्ट्रक्चर ऑफ, action. यस मैम स्ट्रक्चर ऑफ ईयर नहीं समझ रहा है. अच्छा ठीक है. ओके. और जो डिलीटेड नहीं है वो सब आ रहा है ना? हाँ यस मैम. ओके ठीक है. So spinal cord,
the structure of spinal cord, that is a TS of spinal cord also we have understood. There are 31 pairs of spinal nerves coming from the spinal cord. The terminal part is showing a hair horse tail like structure which is called as equina, chorda equina, and the terminal part is called as a phylum terminale. So we have seen the TS of spinal cord also. It has many fissures. 6 matters into the 6 horns, like the dorsal horn, lateral and the ventral, forming the funiculus, dorsal funiculi, lateral funiculi, and the ventral funiculus. So this was a diagram which we have already understood, we have already studied. ये जो सेंट्रल कैनाल है इसके अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, CSF प्रेजेंट होता है. सो डॉर्सल हॉर्न से डॉर्सल रूट फॉर्म होता है, एंड डॉर्सल गैंग्लियंस भी होते हैं. वेंट्रल हॉर्न से वेंट्रल रूट, एंड सिमिलरली the impulse has been traveled by the same way. So just have a look, all of you. You can draw a simple like diagram like this in your exam. Diagram का practice करो रोज. बायो में डायग्राम का प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है. आप उसके लिए एक अलग सा नोटबुक बना लो और उसी में डायग्राम्स प्रैक्टिस करो सारे. सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व. क्रेनियल नर्व्स में कितने हैं, 12 पेयर्स हैं, एंड स्पाइनल नर्व में 31 पेयर्स है. आपको 12 पेयर सीक्वेंस में याद रखना है. इट इज olfactory, motor, pathetic trigeminal abduction, facial, auditory, glossopharyngeal, vagus, spinal accessory, and hypoglossal. With that, you have to remember the types also: sensory, sensory, motor, motor, mixed, motor, mixed, sensory, mixed, mixed, motor, motor. You have to always put a Roman number. Whereas spinal nerve is 31 pairs. Very simple this is. 8 cervical, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral, and coccyx. कैसे फॉर्म होता है स्पाइनल नर्व, ये सब वर्टिब्रल कॉलम में होता है फॉर्म. एंड क्योंकि डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट ज्वाइन होते हैं फॉर द फाइनल फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल नर्व, इसलिए सारे स्पाइनल नर्व कैसे होते हैं, मिक्स्ड टाइप के होते हैं. All spinal nerve are mixed type because it is formed by the fusion of dorsal root, which is sensory in nature, and ventral root, which is motor in nature. Okay, जब वो फ्यूज हो जाता है उसके बाद वो इमीडिएटली 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है. इन आवर बॉडी कैविटी एज अ ramus dorsalis, ramus ventralis, and ramus communicans. Dorsalis will innervate in the dorsal side of the body. Ventralis will innervate in the ventral as well as lateral side of the body, and communicants will communicate with the autonomous nervous system. So this diagram is expected for the tier formation of typical spinal nerve. So it has somatic and autonomous nervous system. Somatic is relaying the system impulses from CNS to the skeletal or the voluntary muscles, whereas autonomous nervous system is relaying, transmitting the message from CNS to the involuntary muscles.
Next is the autonomous nervous system. We have learned its type. This is again very important. Distinguish between sympathetic and parasympathetic. In one word, sympathetic helps in expenditure of energy and parasympathetic helps in conservation of energy. So you can just go through these points. These points are very, very, very important both for the NEET as well as for your board exam. You can either take a screenshot or you can just go through. Done? देखा पूरा ये पॉइंट्स पढ़ा पूरा? कुछ डाउट है क्या इस एंड्रोजन एड्रिनर्जिक फाइबर्स किसको बोलते हैं? then ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट. कोलिनर्जिक फाइबर्स किसको बोलते हैं? Done? Have you taken a screenshot? Yes, ma'am. So this is how it has been given in your textbook also, the same diagram of your textbook. What are the disorders? So 3 disorders. There are many one, but आपको पढ़ने के लिए 12th के लिए सिर्फ इतना ही है. Psychological disorders, mood swing वगैरह होना, behavioral changes होना. Parkinson's disease में क्या होता है? Degeneration of dopamine producing neuron in the central nervous system. Alzheimer's में क्या होता है? It is a type of a dementia. Dementia का मतलब है loss of memory. Now let me go to the next part. Just a second. Okay, I will solve the part which has been given. Sir ने जो किया था wait. All of you can see that your NEET wala na? Yes, you can see now. Yes. Okay, let me slide and go there. आई आपको सब समझ में आया है बेटा? Yes. चलो ईयर पे आते हैं. आपको ईयर में डाउट है ना? You can see this one. Now ईयर में 3 regions है, आउटर, मिडिल एंड इनर. ठीक है. आउटर ईयर में क्या आता है? ईयर पिना आता है, ईयर पिना. ठीक है. एंड दिस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. Middle ear is made up of the 3 ear ossicles, that is the ear bone, and inner ear is made up of ये जो कॉलिए दिख रहा है, जो स्नेल के जैसा दिख रहा है आपको, कॉक्लिए and the what? 3 semicircular canals. So let us understand that. By this only I will explain you. देखो outer ear में क्या क्या है? पिना है, external auditory meatus या फिर canal है. इसका काम क्या है? Collects the vibration. ठीक है. And external auditory send is to the tympanic membrane, जिसको हम ear drum कहते हैं. तो आप देख सकते हो डायग्राम में, यहाँ पे ear drum है जिसको हम tympanic membrane बोल रहे हैं. मतलब साउंड यहाँ से कलेक्ट हुआ और tympanic membrane पे हिट होगा जाकर. ठीक है. तो आप जब कॉर्ड लगाते हो, कान में कॉर्ड लगाते हो और बहुत ज्यादा आवाज से करोगे तो क्या होगा? ये ईयर ड्रम टूटने का चांसेस होता है, बिकॉज इट्स अ सिंगल मेम्ब्रेन, एक पतला सा मेम्ब्रेन होता है ये.
Okay, the skin of the pinna and auditory meatus are having a very fine hair. With that, it is also having a wax glands. Wax glands. किस लिए है? Protection के लिए है. ठीक है? And tympanic membrane is made up of connective tissue covering with a mucous membrane inside. ठीक है, आउटर ईयर. अब हम मिडिल ईयर पे आते हैं. मिडिल ईयर जो है वो ईयर बोन से बना है, जिसको हम ईयर ऑसिकल्स कहते हैं. तो मैलियस, इनकस एंड स्टेप, मिस करके आप याद रख सकते हो, मिस. इसमें से स्टेप जो है वो सबसे छोटा बोन है अपने बॉडी का. ठीक है, मैलियस इज अटैच्ड टू द ईयर ड्रम, whereas स्टेप इज अटैच्ड टू द कॉक्लिए. तभी तो साउंड वहां पे वो पहुंचाएगा. अच्छा, आउटर ईयर और मिडिल ईयर के बीच में देयर इज अ ट्यूब कमिंग into the pharynx which is called as a eustachian tube. ये eustachian tube क्यों होता है? To maintain the pressure, sound pressure को maintain करने के लिए ये eustachian tube होता है. Understood? अब आते हैं हम internal ear पे, जो थोड़ा सा complex है. अच्छा, ये जो internal ear है, मैंने आपको कैसा एग्जाम्पल बताया था, जैसे एक straw है फॉर एग्जाम्पल, है ना, जो जिससे आप लोग पहले के टाइम पे जो स्ट्रॉ आता है, जो आप अपने एक्टिविटी में भी बहुत बार यूज किए रहोगे. तो स्ट्रॉ को अगर आप गोल 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 घुमा दोगे, स्नेल के जैसा कर दोगे, तो आपको कैसा दिखेगा? वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर हमारा कॉक्लिए का है. ठीक है, अंदर से हॉलो है, वो अंदर से हॉलो है, पर हॉलो होने के बाद वो गोल 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 ऐसा फॉर्म हुआ है, स्नेल के कवरिंग के जैसा फॉर्म हुआ है. तो ये जो पूरा कवरिंग है, हाँ, ये किस चीज से भरा हुआ है? लैब्रिंथ से भरा हुआ है, लैब्रिंथ. और ये लैब्रिंथ के भी दो लेयर है, बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनस. बोनी के वजह से उसको एक स्ट्रक्चर मिला. जस्ट अ सेकंड बेटा, आई एम कमिंग इन 2 मिनट. ओके, सो व्हाट आई वाज डिस्कसिंग, ये जो लैब्रिंथ है, यस, फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो है उसको हम लैब्रिंथ बोलते हैं. तो लैब्रिंथ के दो लेयर्स है. जो ऊपर का कवरिंग है, जैसे स्ट्रॉ है, तो स्ट्रॉ का जो प्लास्टिक वाला पार्ट है, लेट अस से इमेजिन दैट प्लास्टिक वाला पार्ट इज कॉल्ड एज अ बोनी लैब्रिंथ. और प्लास्टिक के अंदर भी समझो, इमेजिन करो कि एक लेयर है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ. अंडरस्टूड दिस मच? यस मैम. ओके, अब ये जो बोनी लैब्रिंथ है वो कैसा है फॉर्म में, मतलब कैसे फॉर्म कर रहा है? बोनी लैब्रिंथ ऐसे गोल 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 ऐसे चकली के जैसा फॉर्म कर रहा है. यस, हाँ. अब जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है वो उसके अंदर ही है. मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ उसके अंदर ही है. अब उसके अंदर खाली तो नहीं होगा,
जैसे अभी मैंने आपको स्ट्रॉ बताया तो हॉलो स्पेस है, तो पर वो खाली तो नहीं होगा ना, उसमें कुछ भरा है, तो क्या भरा है उसमें, एंडोलिम्फ भरा है, एंड विच इज सराउंडेड बाय अ पेरिलिम्फ, ठीक है, एंडोलिम्फ भरा है विच इज सराउंडेड बाय द पेरिलिम्फ, और ये एक पूरा कॉइल्ड पार्ट है जिसको हम कॉक्लिए बोलते हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को आप कॉक्लिए बोलोगे, ठीक है। तो मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, जैसे आपने एक बड़ा सा लंबा सा स्ट्रॉ ले लिया, ठीक है, स्ट्रॉ ले लिया, हॉलो है, आपने उसको गोल 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 करके चकली जैसा बना लिया, ठीक है, यस। तो उसका जो आउटर वाला हिस्सा होगा उसको हम क्या कहेंगे, बोनी लैब्रिंथ बोलेंगे। उसके अंदर भी एक लेयर है कॉल्ड एज अ मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, उसके अंदर खाली नहीं है, उसमें भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, एंडोलिम्फ एंड पेरिलिम्फ भरा हुआ है। तो ये पूरे स्ट्रक्चर को अभी आप क्या कहोगे, कॉक्लिए कहोगे, ठीक है। So membranous labyrinth is coiled portion. अगेन अब देखो, अब ये जब इसको आप कट करोगे, जैसा अब ये स्ट्रॉ है, इसको आप अगर कट करके देखोगे तो ये नीचे वाला डायग्राम आपको ऐसा नजर आएगा, ठीक है। जब आप इसको कट करके टीएस सेक्शन लेके देखोगे तो हमें ऐसा कुछ नीचे वाला डायग्राम जैसा दिखेगा। तो अब हमें उसके अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेन्स दिखेंगे। अभी हमने बोला ना उसमें मेम्ब्रेन्स हैं, बोनी लैब्रिंथ के अंदर मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है, तो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ में बहुत सारे मेम्ब्रेन्स है। तो आप देख सकते हो नीचे इस डायग्राम में भी कि देयर आर मेनी मेम्ब्रेन्स लाइक द रेसिनार मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन, है ना, दिख रहा है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, 3 मेम्ब्रेन्स आपको नजर आए, ठीक है। तो देयर आर 3 मेम्ब्रेन्स वी कैन सी, रेसिनार मेम्ब्रेन, मिला सबको, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, रेसिनार Yes, मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन एंड बेसिलर मेम्ब्रेन। एनी डाउट टिल हियर? नो मैम। अच्छा, अब ये देखो, अब ये मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से बने हैं, जैसे अभी एग्जांपल स्ट्रॉ को इमेजिन करो। अभी आपको क्या इमेजिन करना है कि जैसे आप स्ट्रॉ को अगर इमेजिन करोगे तो आपको एक ही होल नजर आएगा उसमें, है ना, एक ही होल नजर आता है ना। पर आप यहाँ पे कैसे इमेजिन करोगे कि स्ट्रॉ तो है पर उसके अंदर 3 होल हैं, 3 होल हैं, मतलब उस एक ही होल के अंदर 3 होल हैं। ये 3 होल क्यों नजर आ रहे हैं आपको, बिकॉज ऑफ दिस 3 मेम्ब्रेन्स, दैट इज अ रेसिनार मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन एंड द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो अब ये जो कैविटीज नजर आ रहे हैं उसको हम स्केला कहेंगे। सो देयर आर 3 स्केलास व्हिच वी कैन सी एज अ स्केला वेस्टिब्यूली, स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पैनी। तो ये जो होल आपको नजर आ रहे हैं उसी को हम स्केला कह रहे हैं। अंडरस्टूड दिस मच? तो ये मेम्ब्रेन के वजह से, ये मेम्ब्रेन के वजह से क्या हो गया है, 3 स्केलास बन गए हैं। हाँ, 3 स्केला, जो ऊपर वाला है वो स्केला वेस्टिब्यूली है, जो बीच वाला है उसका नाम है स्केला मीडिया, और जो नीचे वाला है उसका नाम है स्केला टिम्पैनी। अब इस स्केला के अंदर क्या भरा होगा, ऑब्वियसली एंडोलिम्फ भरा होगा, है ना, ऐसे खाली तो होगा नहीं है, इसमें क्या भरा है, एंडोलिम्फ भरा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा बेसिलर मेम्ब्रेन के बारे में, थोड़ा ज्यादा बात करेंगे। ये बेसिलर मेम्ब्रेन, ये तीनों मेम्ब्रेन तो इंपॉर्टेंट है ही, पर सबसे ज्यादा इसके अंदर बेसिलर मेम्ब्रेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हमने इस बेसिलर मेम्ब्रेन को और नजदीकी से देखा और ध्यान से देखा तो व्हाट वी कैन सी कि इसके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हमने नाम दिया ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। क्या नाम है उसका? बेसिलर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। इस ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के अंदर हेयर सेल्स प्रेजेंट है, हेयर नहीं प्रेजेंट है, हेयर सेल्स, मतलब हेयर के जैसा पतले पतले सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अच्छा, hair cells present, understood? Now hair cells will act as a auditory receptors, ठीक है। व्हाट ये विल काम करेंगे, ऑडिटरी रिसेप्टर्स, मतलब जब कॉलिए पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जब अपना वॉइस जो मतलब जो आवाज है जब वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे आएगा और जब कॉलिए पे आएगा ना, तो हमने मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में कैसे पढ़ा है बेटा कि एक ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के ऊपर हिट करता है, और ऑर्गन ऑफ कॉर्टी पे कौन प्रेजेंट है, हेयर सेल्स प्रेजेंट है जो कि एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। सो हेयर सेल्स एक्ट एज ऑडिटरी रिसेप्टर्स एंड व्हाट दे विल डू, they will help in conduction, है ना, they will help in conduction. So above the hair cells is a one more membrane which we call as a tectorial membrane. Yes, so what will happen, it will press, the organ of Corti will press the hair cells on the tectorial membrane. तो जैसे tectorial membrane पे press होगा
तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और मैसेज क्या कहाँ जाएगा, हमारे ऑडिटरी नर्व से हमारे ब्रेन में जाएगा। इतना समझ में आया सबको? यस मैम। ठीक है, ये तो हो गया एक हिस्सा हमारे कान का, एक हिस्सा जिससे हमें सुनाई देता है। अब एक और हिस्सा है हमारे कान का जो ऐसे, ये देखो इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये वाला पार्ट। इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम यू कैन सी दिस 3 सेमी सर्कुलर कैनाल लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये जो हिस्सा है हमारे कान का वो किसके लिए हेल्प करता है, वो हमारे बैलेंसिंग में मदद करता है। तो वो जो पार्ट है ना which is present above the collier, the portion of ear which is present above the collier, अब collier हो गया, अब collier की जो ऊपर है उसको हम पूरे मिलाकर हम उसको vestibular apparatus कहते हैं। क्या कहते हैं? vestibular apparatus। Have you got? The inner ear also contain vestibular apparatus which is present above the cochlear। मिला इतना सबको? अब इस वेस्टिबुलर apparatus में क्या क्या है, उसके अंदर होता है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, ऑटोलिथ ऑर्गन्स होता है। अभी ऑटोलिथ ऑर्गन में भी 2 हिस्सा है, सैक्युलस एंड यूट्रिकुलस। दैट इज यूट्रिकल भी बोल सकते हो या फिर यूट्रिकुलस भी बोल सकते हो। ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है वो एक दूसरे से राइट एंगल के पैटर्न में प्रेजेंट है और उसमें भी पेरिलिम्फ है। ठीक है, अच्छा अब उसका जो बेस है, यू कैन सी, वेट इसका डायग्राम नहीं दिखा है, इन द नॉर्मल लेक्चर आई हैव शोन यू दिस डायग्राम आल्सो। द बेस ऑफ द सेमी सर्कुलर कैनाल इज स्वोलन, थोड़ा सा वो स्वोलन है, एंड दैट स्वोलन पार्ट इज कॉल्ड एज एम्प्यूला। एम्प्यूला के अंदर 2 प्रोजेक्टिंग रिजेस होते हैं, क्रिस्टा एंड एम्प्यूलारिस। ठीक है, सो सैक्युला एंड यूट्रिकुलर हैव अ प्रोजेक्टिंग रिज व्हिच इज कॉल्ड एज अ मैक्यूला। अब क्या हो गया, देखो सैक्युला और यूट्रिकुलर का प्रोजेक्टिंग रिज को हमने क्या बोला, मैक्यूला, और एम्प्यूला के प्रोजेक्टिंग रिज को हमने क्या बोला, क्रिस्टा एम्प्यूलारिस बोला। तो मतलब क्रिस्टा और एम्प्यूला दोनों भी मिलकर, आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ बेटा? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? देखो बहुत ही सिंपल है, पूरा वेस्टिबुलर अपैरेटस किससे बना है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, ऑटोलिथ ऑर्गन। ठीक है, ऑटोलिथ ऑर्गन में कौन से 2 पार्ट हैं, सैक्युलस एंड यूट्रिकुलस। ठीक है, यस, सैक्युलस एंड यूट्रिकुलस में एक प्रोजेक्टिंग रिज है जिसका नाम क्या है, मैक्यूला, और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल का जो स्वोलन पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्यूला। एम्प्यूला में भी प्रोजेक्टिंग रिज है जिसका नाम क्या है, क्रिस्टा। तो क्रिस्टा एम्प्यूलारिस एंड मैक्यूला ये दोनों मिलकर हमारे बॉडी के इक्विलिब्रियम या पोस्चर में मदद करते हैं। अंडरस्टूड? Yes. यस। एंड मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग इज वेरी सिंपल। हमारा एक्सटर्नल ईयर ला कर देगा ईयर ड्रम तक, ईयर ड्रम मैलियस को हिट करेगा, मैलियस इनकस को करेगा, स्टेप को करेगा, स्टेप के बाद किधर जाएगा, ओवल विंडो से हमारे कॉक्लिये में जाएगा। कॉक्लिये में अभी मैंने आपको बताया कि बेसिलर मेम्ब्रेन पे कौन है, क्या है, हमारा हेयर सेल्स जो है वो प्रेस करेगा अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। जैसे ही टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पे प्रेस होगा इंपल्स जनरेट होगा और हमारे ब्रेन तक जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑडिटरी नर्व, और ब्रेन उसको एनालाइज करेगा या रिकॉग्नाइज करेगा। यस, यस मैम। एनी अदर डाउट, एनी अदर डाउट? मैम मैकेनिज्म ऑफ विजन भी बताओ ना। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ विजन भी बहुत ही सिंपल है। लेट अस सी दिस मैकेनिज्म ऑफ विजन। देखो जब भी लाइट रेज, अभी लाइट रेज कहाँ से आएगा, ऑब्वियसली बाय द लेंस। लेंस पे जैसे ही आएगा हमारे अंदर वाला जो हिस्सा, यू कैन सी द लेबलिंग एज रेटिना। ठीक है, हमारे रेटिना के अंदर 2 कॉन्जुगेट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, कॉन्जुगेट प्रोटीन्स। क्या बोला मैंने, कॉन्जुगेट प्रोटीन। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, जो एक साथ प्रेजेंट है। कौन से हैं 2 प्रोटीन, ऑप्सिन एंड रेटिनॉल। ठीक है, जब तक लाइट हमारे आंखों में नहीं आता है तब तक हमारे रेटिना के अंदर कॉन्जुगेट प्रोटीन प्रेजेंट है, दैट इज ऑप्सिन एंड रेटिनॉल। जैसे ही लाइट हमारे रेटिना में आएगा ये दोनों प्रोटीन एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्सिन रेटिनॉल से सेपरेट हो गया, समझ में आई इतना बात? यस, यस। ऑप्सिन रेटिनॉल से सेपरेट हो गया। अब देखो जैसे
ऑप्सिन एंड रेटिनॉल ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखा है, लेट अस से लाइक दैट, एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखा है। जैसे ही लाइट आएगा दोनों ने एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया। अच्छा, अब दोनों का हाथ छोड़ दिया तो अगर आप इसको अगर केमिस्ट्री वाइज बोलोगे तो अगर इसने एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया मतलब ऑप्सिन का केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो गया, क्योंकि जब वो उसके साथ जुड़ा था उसका केमिकल स्ट्रक्चर अलग था, अब ये अलग हो गया मतलब उसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? Yes. तो ये जो ऑप्सिन का केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो गया है ना, दिस विल क्रिएट द एक्शन पोटेंशियल। समझा? यही एक एक्शन पोटेंशियल का स्टिमुलस का काम करता है, टू सेंड द मैसेज वाया ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन। समझा? तो अभी लेट अस सी ओवर हियर, एंड वी नो दैट हमारे रेटिना में रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, दैट यू ऑल नो। ठीक है, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग से पढ़ते हैं हम। द लाइट वे रेज इज विजिबल वेवलेंथ passes through the cornea। कॉर्निया का लेबलिंग देखो, कॉर्निया से लेंस पे जाएगा, फिर किस पे फोकस होगा? रेटिना पे। अब सारा मैजिक रेटिना के अंदर होने वाला है। हाँ, लाइट रेज विल जनरेट द पोटेंशियल इन रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स एंड कोन्स कहाँ पर होते हैं? रेटिना के अंदर होते हैं। अच्छा, रॉड्स एंड कोन के अंदर दो प्रोटीन्स है, ऑप्सिन एंड रेटिनॉल। लाइट इंड्यूसेस डिसोसिएशन, डिसोसिएशन मतलब सेपरेशन ऑफ रेटिनॉल फ्रॉम ऑप्सिन। इसके वजह से क्या होगा? दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच रिजल्ट इन द चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्सिन। ठीक है, स्ट्रक्चर चेंज हो गया ऑप्सिन का, तो जैसे ही स्ट्रक्चर चेंज हुआ, इट हैज कॉज व्हाट? परमिएबिलिटी इन द सेल्स ऑफ रेटिना, जिसके वजह से एक्शन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। और क्या हो गया? फटाफट सिग्नल किधर जाएगा? with the help of ganglionic cells or the bipolar neuron, the message will be given to the optic nerve and to the optic nerve to the brain। फिर ब्रेन का क्या होगा? ब्रेन उसको एनालाइज करेगा कि क्या चीज है, और उसका एक इमेज हमारे रेटिना पे फॉर्म होता है। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके, एनी अदर डाउट? मैम रिसेप्टर्स का क्लासिफिकेशन समझाना। ये जो सामने दिख रहा है रिसेप्टर्स वाला, ओके। यस मैम। देखो, रिसेप्टर का मतलब क्या होता है? जो रिसीव करने वाला है ना, जो कोई चीज रिसीव करने वाला है। अब हमारे बॉडी में हर एक ही रिसेप्टर हर चीज तो नहीं रिसीव कर सकता है ना, इसीलिए नेचर ने क्या किया है, हमारे बॉडी में अलग अलग रिसेप्टर्स दिए हैं जो कि अलग अलग चीजों को रिसीव करेंगे, उसको समझेंगे या बताएंगे हमारे ब्रेन को। ये सब रिसेप्टर्स क्या करते हैं? हमारे ब्रेन को बताते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, ठीक है, विद द एनवायरनमेंट आउटसाइड। तो जैसे सबसे पहला थर्मो, नाम से ही पता चल रहा है, थर्मो। थर्मो मतलब जो टेम्परेचर के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि टेम्परेचर हॉट है या टेम्परेचर कोल्ड है। जैसे अभी आपको पता चल रहा है कि ठंडी लग रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बहुत गर्मी लग रही है, तो ये कौन बता रहा है? आपके ब्रेन को, आपके बॉडी को कौन बता रहा है? दिस बिन विद द हेल्प ऑफ थर्मो रिसेप्टर्स। ठीक है, अब हमारे स्किन के अंदर दो रिसेप्टर्स होते हैं, टेक्टाइल एंड टैंगो। टेक्टाइल इज फॉर टच एंड टैंगो इज फॉर प्रेशर। जैसे अगर आपको किसी ने टच किया तो आपको फील कैसे होगा? बिकॉज ऑफ टेक्टाइल रिसेप्टर्स। अगर आपको किसी ने धक्का दिया, प्रेशर दिया, तो आपको पता कैसे चलेगा? विद द हेल्प ऑफ टैंगो रिसेप्टर्स। समझ में आया? फिर यस। नोज में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी का मतलब ये होता है सेंस ऑफ स्मेल, तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स विल बी प्रेजेंट इन द नोज फॉर स्मेलिंग। गस्टेट्रो का मतलब ही होता है टेस्ट। जैसे ऑल्फैक्ट्रो का मतलब होता है स्मेल, वैसे गस्टेट्रो का मतलब होता है टेस्ट। तो ये हमारे टंग में प्रेजेंट होगा, बिकॉज टेस्ट तो हम टंग से करते हैं, ठीक है। सो टंग से अपने को अलग अलग टेस्ट का पता चलता है कि खट्टा है, मीठा है, वॉटेवर। सो गस्टेटो रिसेप्टर से वो पता चलता है, दैट इज अ केमिकल रिसेप्टर। फोनो, फोनो का मतलब होता है साउंड। तो आप जो भी सुन रहे हो, ये किसके वजह से अभी सुन रहे हो? बिकॉज ऑफ द फोनो रिसेप्टर्स प्रेजेंट इनसाइड योर ईयर। स्टैटो, स्टैटो का मतलब होता है इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अगर आपका बॉडी इक्विलिब्रियम पे है या नहीं, जैसे अगर आप नहीं ठीक से चल पा रहे तो आपको फील होता है ना कि नहीं मेरे को चक्कर आ रहा है, मेरे को नहीं ठीक से चला जा रहा है, व्हाटएवर, इट इज बिकॉज ऑफ द स्टैटो रिसेप्टर्स। फोटो का मतलब होता है लाइट, मतलब लाइट रिसेप्टर्स, which are present in our
पेन रिसेप्टर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, कि जैसे आपको दर्द हो रहा है कोई चीज का, तो पेन रिसेप्टर्स को अलग अलग नाम भी दिए गए हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एल्जेसिक रिसेप्टर्स, है ना, अलग अलग नाम है पेन रिसेप्टर्स. एंड प्रोप्रियो रिसेप्टर्स. प्रोप्रियो में रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं? हमारे मसल्स में, टेंडॉन्स में, जॉइंट्स में. तो अगर आप बहुत थक जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने आज दिन भर बहुत काम किया, तो आप थक रहे हो, फटीग फील कर रहे हो, तो ये किसके वजह से? प्रोप्रियो रिसेप्टर्स की वजह से. अंडरस्टूड? और Yes, एग्जांपल्स ma'am. हैं, यू कैन जस्ट सी दैट. एनी अदर डाउट? No, ma'am. एंड इसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन में ना बच्चा लोग प्लीज ये याद रखना, ऑल द डिजीजेस के नाम, डिजीजेस के नाम वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल डिजीजेस नाम. हाइपर सिक्रीशन से क्या होता है, हाइपो सिक्रीशन से क्या क्या होता है. ठीक है, मैं ना फटाफट वो शेयर भी कर देती हूँ, सो दैट वी कैन हैव दैट रिविजन आल्सो. जस्ट अ सेकेंड. तब तक अगर आपको कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी. आई विल गिव मी 2 minutes फॉर शेयरिंग दैट. Any other doubt, you can just tell me, let me know any other doubts if you are having in any of the topics. पढ़ाई स्टार्ट हो गई. बायो का कितना पढ़ के हो गया? कितने लेसन्स पढ़ के हो गए आप सबके बायो के? जो थरोली पढ़ के हो गए. पढ़ के हो गया मतलब कि मैं कुछ भी क्वेश्चंस पूछूंगी तो आएगा, ऐसा. ऐसे बायो के कितने टॉपिक्स हो गए पढ़ के? यस. एक भी टॉपिक नहीं हुआ ऐसा? यस और नो? हाँ नहीं तो बोलो. कैन यू ऑल हियर मी? Yes. Ma'am. हाँ तो कुछ तो बोलो तो बेटा. So there are different types of chemical signals: autocrine, endocrine, paracrine, and the pheromones. Autocrines are cells release secreting to the stimulate itself. Endocrine will stimulate the distance cell. Paracrine will stimulate the neighboring cells. Whereas pheromones क्या होते हैं? Pheromones I've told you, it has been seen in the smaller animals, ठीक है, to communicate between each other. So endocrine glands, we have seen there are different types of nature of the hormones as the amine. ये examples बहुत ही important है, both for the NEET as well as for your theory part. हाँ, पेप्टाइड कौन से है, प्रोटीन कौन से है, फैटी कौन से हैं, एवरीथिंग. ठीक है. देन we have seen how the it has been transported. Chemical hormone कैसे transport होते हैं? It is having a special receptors and it will generate the this thing. मतलब we have seen all these things. एक minute, I will just go back to this part only. So there are different endocrine glands you can see on the screen, from hypothalamus to the gonads. हाइपोथैलेमस का इंपॉर्टेंस बहुत है क्योंकि वहां पे क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है. There are many inhibiting factors also, releasing factors and inhibiting factors also, hormones also. We are having 2 portal system in our body. एक तो है hepatic portal system और दूसरा क्या है? hypophyseal portal system. So पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था कि वो कैसा दिखता है, कहाँ पे प्रेजेंट है, किसके अंदर प्रेजेंट है. इनसाइड द सेल्ला टर्सिका एंड द बोन कॉल्ड इज द स्फेनॉइड बोन.
उसके दो रीजन्स है, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस 5 हार्मोन सिक्रीट करता है, जबकि न्यूरो हाइपोफाइसिस सिक्रीट नहीं करता है, स्टोर किया हार्मोन को रिलीज करता है। एडिनो के 3 हिस्से हैं, पास डिस्टालिस, पास इंटरमीडिया एंड पास ट्यूबरालिस। यस, देयर आर डिफरेंट हार्मोन्स। अब आपको हार्मोन्स का क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है उसका हाइपर सिक्रीशन एंड हाइपो सिक्रीशन। सो हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन विल लीड टू द ड्रॉफिज्म, एंड अगर उसका ज्यादा सिक्रीशन हुआ तो इट मे लीड टू जाइजेंटिज्म। In adult, if it has been secreted more, then that will lead to acromegaly. Acromegaly, you can see that the jaw is been out, protruding jaw हो गया है। ऐसे thyroid stimulating hormone का है, it releases the hormone called as thyroxine. ACTH will release the hormone. It is released by the adrenaline cortex. Adrenal cortex से release होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन को 2-3 नाम होता है, ल्यूट्रोपिन हार्मोन या फिर मैमोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं हम इसे, जो मिल्क प्रोडक्शन में मदद करता है। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो फॉलिकल्स को बनने में या फिर गैमेट्स के बनने में मदद करता है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बनने में मदद करता है। और साथ साथ में ICSH हार्मोन जो है या फिर हार्मोन जो है वो क्या करता है, हार्मोन्स बनाने में मदद करता है, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल एंड फीमेल में संभालता है। पार्स इंटरमीडिया भी हार्मोन रिलीज करता है, पर वो हमारे ह्यूमन बीइंग में पुअरली डेवलप्ड है। न्यूरो हाइपोफाइसिस स्टोर करके रखता है 2 हार्मोन्स, दैट इज द ऑक्सीटोसिन व्हिच इज द बर्थ हार्मोन एंड द ADH व्हिच इज अ वैसोप्रेसिन। अगर इसका कमी हो गया तो इट मे लीड टू द डिजीज कॉल्ड एज अ डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस का क्या सिम्टम्स है, more of thirst and more of urine, ठीक है। so more of thirst is called as what polydipsia, and more of urine is called as polyuria. So pineal gland releases melatonin, which is controlling our biological clock, that is our sleep. Thyroid gland का ये structure हमने पढ़ा, it is divided left and right with joined with the help of isthmus. Then ये diagram बहुत ही important है, TS of thyroid gland, very very important. This diagram has not been given in your book. I want all of you to take a screenshot if you have not. If somebody has not taken, please take the screenshot of this TS of thyroid gland. It will help you to understand the structure in a more better way. क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम नहीं है, ये डायग्राम आपको पढ़ना भी नहीं है और ना ही बनाना है, बट ये आपको डायग्राम समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। So it has C cells, it has parathyroid follicles, yes, which contains the T3 and T4. साथ में it has calcitonin hormone also. Okay, these are the functions of thyroxine hormone. कैल्सिटोनिन का काम क्या है, कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करना। थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स याद रखो, हाइपरथायराइडिज्म, ग्रेव्स डिजीज जिसको हम एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर भी बोलते हैं। आप देख सकते हो कि आंखें कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी हो जाती हैं, ऐसा लगता है स्टेरिंग आईज हो गए हैं। हाइपोथायराइडिज्म, क्रिटिनिज्म या फिर मिक्सिडिमा, सिंपल गॉइटर में क्या होता है, बिकॉज ऑफ आयोडीन का कमी से, आयोडीन के कमी से सिंपल गॉइटर होता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड किधर है, बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड है। पैराथ हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कोलिप्स हार्मोन, ये भी कैल्शियम को रेगुलेट करने में मदद करता है। इसका हाइपर सिक्रीशन से क्या होता है, टेटानी, यू कैन सी द टेटानी।
Then osteoporosis, the bones are becoming porous, which is this diagram. It's a thymus gland जो कि एंटीबॉडीज बनाने में मदद करता है, सो टी लिम्फोसाइट्स बनाने में मदद करता है. एड्रीनल ग्लैंड या सुपर एड्रीनल ग्लैंड इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज उसके दो हिस्से हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला. कॉर्टेक्स अलग हार्मोन बनाता है, मेडुला अलग हार्मोन बनाता है. कॉर्टेक्स में 3 कॉर्टिकॉइड्स बनते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, है ना. मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एग्जांपल क्या है? एल्डोस्टेरॉन है. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एग्जांपल क्या है? कॉर्टिसोल है. एंड गोनाडोकॉर्टिकॉइड का एग्जांपल क्या है? एंड्रोजन्स या फिर एस्ट्राडियोल्स है. ये तो होगा कॉर्टेक्स का. डिसऑर्डर्स क्या क्या है कॉर्टेक्स के? एडिसन्स डिजीज, कुशन्स डिजीज, adrenal medulla which releases the hormones, that is epinephrine and norepinephrine. ये कौन सा ग्लैंड है? आप देख सकते हो पैनक्रिया के पास है. सो इजलेट ऑफ लैंगरहैन है जो कि इंसुलिन बनाता है. सो उसके दो सेल्स अलग सेल्स होते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड एफ सेल्स. सो यहाँ से इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होता है बॉडी में. अगर इसका कमी हो गया तो कौन सा डायबिटीज होता है? डायबिटीज मेलाइटस होता है, डायबिटीज मेलाइटस. ठीक है. गोनाड्स में अगर टेस्टिस एंड ओवरीज में कुछ हुआ तो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होगा. एस्ट्राडियोल इज द मेन एस्ट्रोजन हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरॉन इज अ pregnancy hormone. Relaxin has been produced at the end of gestation period and inhibin is secreted by the corpus luteum. Testes will help in the production of testosterone hormone. So placenta, you know that it is also acting as a temporary endocrine gland. Gastrointestinal glands, gastrin, secretin, CCK and GIP. Kidney also act as an endocrine gland to secrete renin hormone, erythropoietin and calcitriol. Heart also releases ANF hormone. Yes. What is HT? It is a hormone therapy. Yes. So I hope everything has been cleared and understood. No doubt in this particular lesson. Yes or no? मैम बोलो. मैम एंट्रेंस में न्यूरोट्रांसमीटर के फंक्शन पूछे जाते हैं. हाँ, तो न्यूरोट्रांसमीटर का फंक्शन क्या है आप मुझे बताओ. रिफ्लेक्स एक्शन. यस मैम, लेकिन स्पेसिफिकली डिफरेंट टाइप्स के लिए पूछे जाते हैं क्या? जैसे डोपामाइन का क्या है फंक्शन वैसे? हाँ यस, मैंने वो चार्ट दिया था ना आपको, आपने स्क्रीनशॉट लिया था क्या बेटा? मैंने यस मैम. जब हाँ ये होगा ऑब्वियसली पूछे जाएंगे. ओके. नॉर्मल के वक्त से ना अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या क्या है उसका मैंने आपको बोला था स्क्रीनशॉट लेने के लिए. हाँ यस मैम. यस बेटा, it can be asked for NEET point of view. ओके, थैंक यू मैम. Any other doubt? Any other doubt? Anybody is having any other doubt? Yes or no? हाँ या नहीं तो बोलो. नो मैम. No, ma'am. No. So I think so we can stop now. Chalo then, goodbye all of you.